Okay, so what we were doing last time was we were discussing particle in a box type of a problem, or we can also say that we were discussing infinite potential well type of a problem. What we will have to do today is we have to do, because there is nothing like an infinite potential well. There is nothing like an infinite potential well in real life. There is nothing like infinite potential well in real life. कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि infinite potential well है आपके पास. So in real life, what type of examples do we have is instead of having infinite potential well, we have finite potential well. अगर आप प्रोफाइल को समझने की कोशिश करें, so it is something like this. It is something like this. Let's say this is x equals to 0. This is x equals to L. Then in between 0 to L, the potential is 0. And if your x is greater than L, then the potential is, let's say, some finite value u. And if it is less than 0, then also it is some finite value u. So ये जो है, this type of an arrangement, extending to infinity, here also such an arrangement extending to infinity. This is going to plus infinity, this is going to minus infinity, and in between, in this region, you have u equals to 0 and your particle is there. Particle is there. Such an arrangement is called finite potential well. Okay? और ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास. ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं व्हेन आवर पार्टिकल इज बाउंडेड बाय सम फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू. ठीक है, जैसे your particle which is trapped inside nucleus, your particle which is trapped inside coulombic forces, finite होती है ना, so we can consider that type of an arrangement. Remember that we are only dealing with one dimensional aspects right now. ठीक है, so because if you try to find out what is psi 1, what is psi 2 and what is psi 3, क्लासिकली तो क्या कहा जाता है, क्लासिकली मतलब जो हमने फिजिक्स पढ़ी है उसमें ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी, सो वन इज द थिंग विच इज ई, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एंड अनदर थिंग इज द पोटेंशियल बाउंड्रीज या बाउंडेड बाय पोटेंशियल यू. तो ये पोटेंशियल है and it is given that your energy is less than the potential. अगर ऐसा है that we have a particle which is having less energy as compared to the potential energy, then in such cases what we have is this. We consider that the particle is there, it will just go to the wall, will strike and will come back and will strike to the another wall, will come back, and it will do only the motion like this. It will never penetrate into the wall. ठीक है, it will never penetrate into the wall अगर इसकी एनर्जी u से कम है. जैसे you can consider the example, आप दीवार से बहुत दूर से दौड़कर आते हैं और दीवार से टकरा जाते हैं, बिकॉज यू नो दैट दीवार की पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा है, उसके अंदर जो मिट्टी ईंटें सीमेंट लगा है वो इतना ज्यादा है कि मेरी भागने की क्षमता से वो नहीं टूट सकती. वहीं अगर हम एक कार ले आए जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो पॉसिबल है दीवार टूट जाए या वो दीवार के पार चली जाए कार, बेशक तोड़ने के बाद. क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इवन इफ योर एनर्जी इज लेस देन यू, योर पार्टिकल कैन पेनिट्रेट इनटू द वॉल बोथ साइड. ठीक है,
And this is what we are going to understand, this is what we are going to try to understand today. तो हमारे पास तीन रीजन है, एक है रीजन 2, एक है रीजन 1, एक है रीजन 3. ओके, if you consider the differential equation in region 1, what is the value of potential? In region 1 the potential is 0. Therefore our differential equation, which is given by del square psi by del x square, del square psi by del x square plus 2m upon h cross square e minus u psi equals to 0. If I talk only about region 1, then my differential equation will reduce to what? Square psi by del x square plus 2m e upon h cross square psi equals to 0. Because in region 1 we have u equals to 0. Region 1 ये वाला है, ये गड्ढा. ठीक है, और इस रीजन 1 में इस तरीके के सॉल्यूशन आएंगे, यू नो देन, कि अगर मैं 2m ई अपॉन एच क्रॉस को कुछ वैल्यू फ्रीक्वेंसी या कुछ मान लूं, देन आई विल हैव माय सॉल्यूशन टू बी ऑफ दिस फॉर्म. ऑफ विच फॉर्म? ऑफ दिस, दैट psi is equals to a sin under root of 2m e upon h cross square x plus b cos under root of 2m e upon h cross square x. ये इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. फाइन. एक और रीजन है हमारे पास विच वी कॉल एज रीजन 2 एंड रीजन 3. इन रीजन 2 in region 2, because our potential is not 0, in region 2 our potential is not 0, therefore u is not equals to 0. तो differential equation हो जाएगी del square psi by del x square plus 2m upon h cross square e minus u, this is there, अब ये रहेगा, u रहेगा, psi equals to 0. ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक नोन फॉर्म में तोड़ सकते हैं. वी नो कि u की वैल्यू e से ज्यादा है, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन दैट योर u इज ग्रेटर देन e. तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं? आई कैन ऑल्सो राइट माई इक्वेशन एज दिस, del square psi by del x square minus 2m upon h cross square u minus e of psi equals to 0. ठीक है, देन what can I can write my equation, ये वाला जो टर्म दिख रहा है इसे मैं कोई a square अगर मान लूं, so I can write this as del square psi by del x square minus of a square psi equals to x, where I have considered that a का मतलब हुआ under root of 2m u minus e upon h cross. तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास. ओके, जहां पे a की वैल्यू पॉजिटिव है, ये देखिए ये u माइनस ई है और ये रूट है, ये h क्रॉस है, ऑल रियल एंड पॉजिटिव. तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप CF और PI याद हो, कोई बता सकता है इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होता है? सो व्हाट वी हैव गॉट इज दिस, del square psi by del x square is equals to a square psi. पहले माइनस ऑफ सम स्क्वायर साई आता था, लेकिन अब पॉजिटिव ए स्क्वायर साई है. तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई बताएगा? इट इज a sin ax plus b cos bx. okay, no, because it is real and positive, that's why the solution should not be sinusoidal. नेगेटिव होता तो साइनसॉइडल चल जाता. okay, c1 cos x c2 exactly. So it would be of this form, c e to the power ax plus d e to the power minus ax. इस तरीके का सॉल्यूशन आता है.
ठीक है, एंड इस तरीके के सोल्यूशन वी हैव गॉट फॉर रीजन 2। सिमिलरली अगर आप रीजन 3 की बात करें, रीजन 2 में तो इस तरीके का सोल्यूशन आएगा, यू रिमेंबर दैट। अगर आप रीजन 3 की बात करें तो रीजन 3 में यू की वैल्यू क्या है, 0 या नहीं है 0? रीजन 3 ये वाला है, इसमें भी यू की एक फाइनाइट वैल्यू है, 0 नहीं है। तो इसीलिए सारा का सारा प्रोसेस सेम होगा, बट वी कैन गेट आंसर लाइक दिस, psi3 is equals to, let's say, some f e to the power ax plus g e to the power minus ax। इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। रीजन 2 में ये रहा, रीजन 3 में ये रहा, और रीजन 1 में हमने पहले ही निकाल लिया, इस तरीके का सॉल्यूशन होगा। अब कुछ कंडीशंस लगाते हैं, ये एबीसीडी की कुछ वैल्यूज हम पता करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर दैट योर psi2 is defined for x lying in between minus infinity to 0. Okay, your psi1 is defined for x lying between, बताइए कहां से कहां तक? सर 0 to L। 0 to L, and psi3 is defined for x lying between L to infinity। ठीक है, now what was the psi2 we had? It was c e to the power ax plus d e to the power minus ax। at minus infinity इन दोनों में से कौन सा टर्म इन्फिनिट हो जाएगा? who can tell me? at minus infinity x की जगह माइनस इंफिनिटी लगाने से दिस विल गो टू इंफिनिटी, e to the power minus of minus infinity is e to the power infinity, so this will take the term shooting to 0, but we want that, ये फाइनाइटनेस थ्योरम या फिर ये बताते हैं, we know that our psi should tend to 0 as our x tends to infinity or minus infinity। Therefore this condition requires, because if I am applying my x tending to minus infinity, my psi2 is going to infinity, which I don't want. Therefore I can confine my solution to, in order to satisfy this term, that it is equals to c e to the power ax only, and this is defined in between x minus infinity to 0। ठीक है, ये कंडीशन इंपोज कर दी क्योंकि हम चाहते हैं कि सोल्यूशन इंफिनिटी होना चाहिए, इंफिनिटी पर सोल्यूशन 0 रहना चाहिए इंफिनिटी पर। ये तो प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी थी एक वेल बिहेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज। सिमिलरली व्हाट अबाउट रीजन 3? For region 3 we have f e to the power ax plus g e to the power minus ax, and this is defined in between x l से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो आप देखें जैसे ही मैं प्लस इंफिनिटी करूंगा इस e टू द पावर ax को, दिस विल शूट टू 0। देयरफॉर कौन सा टर्म बचना चाहिए इन दोनों में से? आई शुड ओनली बी हैविंग g e to the power minus ax remaining। Okay, so this is very much required। g e to the power minus ax remaining। So I have got full solution with me, that my psi3 is g to the power minus ax, psi2 is c e to the power ax, and psi1 is as it is, जो अभी हमने पहले निकाला था, it is there। Okay, now the condition is this, that if you have these boundaries, you are considering that ये रहा साहब हमारा x equals to l, ये रहा x equals to l, और ये रहा x equals to 0। ओके, और ये हमारा फाइनाइट पोटेंशियल वेल है। तो अर्लियर अगर ये इन्फिनिट था तो वी वर हैविंग अ कंडीशन की बाउंड्रीज पर द वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन वाज 0। नाउ इट इज नॉट लाइक दिस। इवन
On the boundaries you can have existing wave function, but that value will be going to 0 as your x goes to infinity or minus infinity. ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म. एक और पॉसिबिलिटी ये है दैट यू कैन हैव इट लाइक दिस, क्योंकि साइन ओमेगा टाइप के टर्म है, तो वी कैन हैव आवर साइन टर्म्स गोइंग बोथ वेज. ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर टर्म. सेकेंड ऑर्डर टर्म में क्या था, दो हाफ वेवलेंथ आ सकती है, तो इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस. ये एक साइन वेवलेंथ है. जैसे हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, वी कंसीडर फॉर इन्फिनिट पोटेंशियल वेल थिंग्स समथिंग लाइक दिस. हाफ वेवलेंथ आ सकती है, 2 हाफ वेवलेंथ आ सकती है, 3 हाफ वेवलेंथ आ सकती है, लाइक दिस. तो ये हाफ वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट हुआ, ये 2 हाफ वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट. बट आवर सोल्यूशन एग्जिस्ट हियर एज वेल, हियर एज वेल. यहां देखें, आवर सोल्यूशन एग्जिस्ट ऑन द पार्ट वेयर u is not equals to 0 also. भले ही कम है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, बट इट इज देयर. यहां पे भी देखिए, इट इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बट इट इज देयर. तो अब ऑन द बाउंड्रीज इफ यू कंसीडर, so at x equals to 0, which is the boundary, the solution coming from side 2 and the solution as described by psi 1 should be equal. कंटिन्यूटी चाहिए ना, psi 1 should be continuous. Remember the very first requirement of wave function. तो हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, that on applying boundary conditions, what we will get is at x equals to 0, on applying boundary conditions at x equals to 0, your psi 1 should be equals to psi 2. इसका मतलब psi 1 क्या था, psi 1 was a sine under root of 2m e upon h cross into x plus b cos under root of 2m e upon h cross into x has to be equals to what we had, c e to the power ax. अब इस पूरी टर्म में, बट दिस इज ओनली एट x इक्वल्स टू 0. हमेशा नहीं ट्रू होगा ये, इट विल ओनली बी ट्रू एट द बाउंड्री. बाउंड्री इज एट x इक्वल्स टू 0. तो व्हेन यू विल पुट x इक्वल्स टू 0, क्या लगता है, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, sin 0 इज 0, दिस विल गो, cos 0 is 1 और e to the power 0 is also 1. So we will get b should be equals to c. Getting something? This is from a boundary condition that b should be equals to c. नोट कर रहे हो साथ की साथ? यस सर. अब एक और बाउंड्री कंडीशन भी लगाई जा सकती है एट x इक्वल्स टू l, लेकिन ये किस किस में लगेगी, psi 1 और psi 3 में. सो एट x इक्वल्स टू l, we have a sine under root of 2me upon h cross l plus b cos under root of 2me upon h cross l is equals to what we have is f और g में से f चला गया था, g e to the power minus al. This is the condition, we have it in this form. तो अब देखें, पहले जब हम पार्टिकल इन अ बॉक्स या फाइनाइट इन्फिनिट पोटेंशियल वेल कर रहे थे, तो एक कॉस वाला टर्म तो 0 हो जाता था, बट नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग. दिस कॉस टर्म इज नॉट गोइंग टू 0. इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ बोथ कॉस एंड साइन टर्म्स ये बताता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो इन रीजन्स में भी, रीजन 3
और रीजन 2 में भी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, इनफैक्ट इट एग्जिस्ट विद अ नॉन जीरो वैल्यू। बस आपको इतना ही याद रखना है, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट फर्दर। अगर आपको एग्जाम में आता है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन फाइनाइट पोटेंशियल वेल, तो ये सारे डायग्राम्स और ये इक्वेशंस बता देंगे, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ना। विल यू बी एबल टू डू दैट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. दैट्स ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसी से मिलता जुलता एक इफेक्ट है जिसे कहते हैं टनल इफेक्ट, उसे पढ़ने की कोशिश, उसे समझते हैं व्हाट दैट इज। सो यू कैन राइट डाउन न्यू हेडिंग, व्हाट इज कॉल्ड एज टनलिंग और टनल इफेक्ट। ओके, टनल इफेक्ट। सपोज यू हैव अ बैरियर, पहले था वेल, अब है बैरियर। वेल और बैरियर में अंतर समझ लीजिए। वेल का मतलब होता है गड्ढा और बैरियर का मतलब होता है रोड़ा। यहां से आ रहा है, कोई चीज से टकरा जाए। वेल का मतलब है कोई चीज आ रही है और गिर। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दोज वर द एग्जांपल्स ऑफ वेल। अब जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी, दोज विल बी द एग्जांपल्स ऑफ, तो ये देखिए अभी तक हमने वेल पढ़े थे कि गड्ढा था, इन बिटवीन वी वर हैविंग u इक्वल्स टू 0। अब ये ऐसा है दैट इन बिटवीन यू आर हैविंग, ये मान लीजिए 0 से l इसकी चौड़ाई है, यू आर हैविंग u इक्वल्स टू सम फाइनाइट वैल्यू, रेस्ट हियर एंड हियर योर पोटेंशियल इज 0। इसे कहते हैं बैरियर, ठीक है। और ये इसकी हाइट मींस, हमने इसकी हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है। जितनी ऊंची हाइट होगी इसका मतलब उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। फाइन, नाउ वी हैव अ पार्टिकल कमिंग इन दिस डायरेक्शन, in positive x direction, having energy E which is less than U, having energy E which is less than U. So E here is less than U still. तो क्या तरीका हो सकता है? What you can have is कि ये पार्टिकल आया, इस दीवार से टकराया और वापस चला गया, करेक्ट। तो हमने कहा कि psi1 was the wave function which was corresponding to the particle coming in positive x direction. Psi2, or I can represent it as psi1 plus. psi1 plus is the wave function which represent x positive direction में आ रहा है, और टकराने से जब वापस चला गया तो I can write that as psi1 minus. Okay, but there is another probability. Okay, I will tell you what that is. जो अभी हमने सीखा that if we have finite potential well, तो e to the power minus ax टाइप का decaying solution can also exist inside this well. So here also I can have my wave function some psi2 existing. और this is also possible that इसकी अगर लेंथ और width इतनी कम हो जाए that sometimes a wave function will also tunnel through, pass through this wall with some value, let's say psi3 plus or psi3 plus. This is called as tunneling effect. Even if your energy is less as compared to the potential barrier, still there is a probability that the particle can tunnel through. Okay, how is the mechanism, what is the mechanism behind? We have seen that कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा थिन कर लेता हूं, and my particle is coming in this particular way. I know that after striking, because of the continuity conditions imposed, there will be an exponentially decaying solution इसमें। और अगर इसकी width इतनी हो गई कि solution पूरी तरह से decay ना हो पाया and it comes out also, then I can have psi3 on the other side also. I can call this effect as tunneling. Okay, बाहर आ जाना, although it was possessing less energy as compared to the potential barrier.
तो इस टनलिंग की प्रोबेबिलिटी, आप बस फॉर्मूला याद रख लीजिए, डेरिवेशन यू मे जस्ट गेट, the probability that your particle will transmit or tunnel through is given by e to the power minus 2 k2 into L. So it depends on a factor which is k2 and a factor which is L. तो जितनी ज्यादा लंबाई हो जाएगी यानी चौड़ाई हो जाएगी, ये L जितना ज्यादा होगा उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी, एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगी. Where k2 is, where k2 is under root 2m u minus e upon h cross. So finally, if you look at what is the transmission yet tunneling probability, it is e to the power minus twice of under root of 2m u minus e upon h cross into L. So you have to remember this particular formula. ठीक है, और इसमें आपको सवाल पूछे जा सकते हैं. how can we ask questions now? हम ये पूछ सकते हैं कि अगर U गिवन है, E गिवन है और L गिवन है, बताइए T क्या होगा. या फिर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, T गिवन है, E गिवन है, U भी गिवन है, तो पूछेंगे बताइए L क्या था. तो दोनों चीजें पूछी जा सकती है. I will tell you on this tunneling effect only most of your electronic storage devices works. जैसे USB जो हमारी पेन ड्राइव होती है वो इसी इफेक्ट पे काम करती है, टनलिंग इफेक्ट पे. ठीक है, कुछ और हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप होते हैं जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. सो सेम तो नहीं, लेकिन मैं स्कैनिंग टनलिंग को स्पेशली बोल सकता हूं दैट इट आल्सो वर्क्स ऑन टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स just cross the barrier which is more than their own energy. ठीक है, हालांकि प्रोबेबिलिटी कम होती है, आप देखेंगे when you will solve it the probability is करोड़ों गुना कम. लेकिन अगर 1 करोड़ चांसेस में से एक चांस ऐसा है कि that it can tunnel through, that is a big thing. क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें किसी कंडक्टर में तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है. ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं. आई एम गिविंग यू 2-3 minutes. आई एम गिविंग यू 20 seconds. यू जस्ट गो एंड अरेंज अ कैलकुलेटर, हैंड कैलकुलेटर ले आइए. और जब ले आए तो यू जस्ट ड्रॉप अ डॉट एज मैसेज टू मी. Okay. Could anyone of you brought? Okay, Harsh Arora, Deepak Kardam के messages I couldn't get. Harshit Gupta also I have got it. बाकी लोग arrange करिए जल्दी से. I will then show you an example. So it is given that you have electrons, जिनकी energy है 1 electron volts. So you have electrons. You know that you can anyways associate electrons which are particle to a wave. They are having energy 1 electron volts and they are incident on a barrier. Barrier का मतलब हुआ हमने कोई नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया है, क्योंकि यही तो बैरियर की तरह काम करेगा. दिस बैरियर की हाइट या एनर्जी इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, और जो लेंथ है इस बैरियर की दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 0.5 नैनोमीटर. नाउ यू अज्यूम कि नैनोमीटर रीजन की लेंथ है.
अब बताइए कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी T क्या होगी? एवरीथिंग इज गिवन, E is given, U is given, L is given, and you know that the formula is exponential of minus of 2 under root of 2m u minus E अपॉन h क्रॉस इंटू एल। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 2m u माइनस e अपॉन h क्रॉस। सो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 to the power minus 31 kgs। और u माइनस e का मतलब हुआ 10 माइनस 1 कितना बचा बच्चों? 9। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज h क्रॉस इटसेल्फ हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू जूल्स है ना। सो इट इज 9 into 1.6 10 raised to the power minus 19 divided by h क्रॉस की वैल्यू अगर जूल पर सेकंड में निकालें, सो इट इज 1.054 10 raised to the power minus 34। ओके, हमने 2 पाई से डिवाइड दे दिया। अब बताइए इसको कैलकुलेट करके व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी? कैन एनीवन गेस व्हाट विल बी द यूनिट्स इसकी, जो मैं K2 बोल रहा हूं, ए पर्टिकुलर फैक्टर, व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ दिस? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द आंसर। ऐसे ही अनम्यूट होकर बता दीजिए। सर पर मीटर। हाँ, यूनिट तो पर मीटर होगी, ये बिल्कुल सही बताया आपने। सो यूनिट विल बी पर मीटर, और इसकी वैल्यू क्या होगी आप चेक करके देखिए। इज इट 1.61 10 to the power minus 10 प्लस 10? चेक कर लीजिए। Yes, sir. ओके, सो दिस इज इट, वेरी नाइस। देन वी हैव L। L कितना दिया है हमारे पास? 0.5 नैनोमीटर, 0.5 नैनोमीटर। सो नैनोमीटर्स है तो इसे एंगस्ट्रॉम्स में लिख सकते हैं। इट इज इक्वल्स टू 5 एंगस्ट्रॉम्स। ये 10 to the power minus 9 था, हम 10 to the power minus 10 में कन्वर्ट करेंगे तो the point will be coming over here. It can be written as 5 angstrom या फिर 5 into 10 to the power minus 10 meters। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, K2 को और L को। ये वाला टर्म जो है that is equals to K2, इसको L से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए क्या है? Sir, 8. So let me just check that. It is, we have 1.61 into 5 और 10 to the power 10 और 10 to the power minus 10 ने तो खुदकुशी कर ली है, तो कुछ बचा ही नहीं। So we get 16 5 is nearly 8, 1.6 times 5 nearly 8 आना चाहिए, करेक्ट। और फिर इसको 2 से गुणा करना है, तो 2 into 8 कितना हो गया? 16। So it will be e to the power minus 2, और ये पूरा फैक्टर K2 into L हमने 8 निकाला, तो it is this, it is nearly equals to e to the power minus 16। अब वैल्यू बताइए e to the power minus 16 कितनी होगी? E is 1.125। ना e to the power minus 16 है, minus 16 1.125। सर into 1.12 1.12 1.125 और 10 to the power में कुछ भी नहीं है। -7। That is important यार, that is really really important। So 1.1 10 to the power minus 7, आगे से मतलब नहीं है। 1.1 10 to the power minus 7 बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज। इसका मतलब हुआ कि इतने सारे प्रयासों के बाद एक बार ऐसा प्रयास होगा कि द इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन एक्चुअली टनल थ्रू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैरियर। आप इसे 1 अपॉन करके देख लीजिए, ये इट इज 1.1 10 raised to the power minus 7, बहुत छोटी वैल्यू हो गई है। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट
अगर आप नंबर ऑफ काउंट देखें ना कि कितनी बार ट्राई करने पे ऐसा पॉसिबल है, तो इट इज 8.9 मिलियंस में से एक 1/8.9 मिलियंस ट्रायल होंगे। ये इलेक्ट्रॉन कम से कम 8.9 मिलियंस बार ट्राई करेगा, टकराएगा टकराएगा टकराएगा, वापस जाएगा टकराएगा वापस जाएगा। कोई एक चांस ऐसा होगा इन 8.9 मिलियन में से कि वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी बेशक बहुत 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 ज्यादा कम है, बट है। क्वांटम मैकेनिक्स यही बताती है कि मैं दीवार की तरफ दौड़ता हुआ आऊं और अगर मेरा साइज जो है वो एटॉमिक लेवल पर है, देन आई कैन टनल थ्रू द वॉल आल्सो। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आई कैन टनल थ्रू द वॉल। ठीक है, इसलिए ये अमेजिंग है। हाँ पूछिए। सर सर अगर हम इसमें सर मास अगर हम बड़ा लेते हैं, अगर हम जैसे कि किसी एक ह्यूमन हाँ, बॉडी का मास लेते हैं तो √2 टाइम्स कम हो जाती, क्योंकि e⁻⁻ में तो √m टाइम्स कम हो जाती। मास आप ज्यादा कर लेते तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। सही बात है ना? ओके सर, हाँ ये सर। तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी कम हो जाती, क्योंकि e⁻⁻ में चल रहा है। अब आप एक बात बताइए, अगर टनलिंग प्रोबेबिलिटी T1 है किसी चीज की एट लेंथ L, तो ये होता है 2k2 into L1। और ये बताइए कि T2 क्या होगी अगर L2 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ L1 है, तो इट वुड बी व्हाट e⁻⁻2 k2 into 2 L1। so it would be T2 e⁻⁻2 k2 L1, और फिर साथ में 2 भी चल रहा है तो 4 कर दूं इसे। यस सर, फुल। so what will happen is now T2 will be equals to e⁻⁻2 यस सर। और 2k2 L1। अब बताइए इन दोनों में कितने का फर्क पड़ेगा? इट वुड बी e⁻⁻2, और डिफरेंस नहीं है, इसका रेशियो ले लीजिए। यस सर, तो काफी बढ़ जाएगा सर। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आएगी, नीचे वाली छोटी आएगी। नीचे वाली बहुत कम हो जाएगी, उसकी दुगनी कम हो जाएगी, मतलब Yes. दुगनी एक्सपोनेंशियल में कम होगी। मतलब डिवाइड बाय 2 नहीं हुआ है ये, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिवाइडिंग बाय 2। समझ यस रहे सर, यस सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ज्यादा कम हो जाएगी बहुत। हो? ज्यादा कम हो जाएगी, एग्जैक्टली तो Yes, और कम हो जाएगी। दैट इज द रीजन वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर Yes, लेंथ sir. आपने बढ़ा दी या मास चेंज कर दिया या एनर्जी बदल दी तो काफी Yes. फर्क पड़ जाता है टनलिंग प्रोबेबिलिटी। यस सर। ओके, ये चीज समझ आई? तो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी, व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि हम लोग दोबारा से ज्वाइन करें। डू यू ऑल अग्री? एक लास्ट टॉपिक और कंप्लीट करना है, इट इज नॉट दैट टफ, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके So, सर। okay. So we will rejoin. We still have some time, 20-25 minutes में we'll try to finish harmonic oscillator. But ये रिकॉर्डिंग ज्यादा बड़ी हो जाएगी उन लोगों के लिए जो इसको डायरेक्टली नहीं देख रहे। So I will just stop the recording first.